In the last 24 hours, viewer, the heat on the Pune Porsche story has ensured an unusual swiftness of action against the powerful and influential in the city. Something you simply do not see routinely in this country, let's face it. The spotlight we at India Today have put on this incident in which a 2 crore rupee sports car driven by the underage son of a powerful Pune builder fatally hit 2 young software engineers quickly triggered the arrest of the boy's father this morning. Vishal Agarwal, a clarification from the Pune police that it is going the distance to ensure the boy is tried as an adult for his alleged crimes, and that justice is not only served but seen to be served. Now, you may argue that this is but one little incident. But viewer, you and I both know that the reason this isolated incident from Pune has gone so overwhelmingly viral is because even in our biggest cities, we've become completely desensitized to how the rich and powerful get away with crimes. How privilege and access allows a selective application of the law like it so far has in Pune, at least as far as bail is concerned. How money and muscle power frequently allows the children of the rich to escape the full extent of the law. I'll give you a few seconds to think of examples. Come up with examples, viewer, if you can, of the rich and wealthy paying a real legal price for their crimes. I'll wait while you think. Exactly. You cannot think of any because there are no real examples. As we look at the images of grieving mothers and fathers, shattered siblings of Ashwini and Anish, I've been wondering why this one incident has captured the attention of a nation so totally. Well, I think it's because India wants to become less tolerant of the selective application of the law and bail conditions. A rising nation like ours wants these medieval divisions of treatment to be thrown forever into the dustbins of history. In Ashwini and Anish, 2 young software engineers, and their shattered families, lies an echo of a young India saying enough, and not for the first time. Now, the cynics among us, including me myself, wonder if this story will still be a headline a week from now. Because for the last 24 hours, I've been flooded with messages asking me not to let go of this story. The question, viewer, is, will India forget its sense of helpless rage in a few days and forget this story and move on? Will Anish and Ashwini become, as everyone before them, barely visible spectres on the highway of Indian privilege? The VVIP privileges of the rich are only one of the many inequities we live in. But as India strives to climb the huge mountain of building a more equitable society, a speeding Porsche driven by an apparently remorseless family happy to wield influence for a statutory soft touch enrages and infuriates an India eager to stamp out such arrogance, the impunity of the affluent. The demand for Vishal Agarwal's son to be tried as an adult is not an emotional demand, viewer. It is steeped in the collective voice of a country that is tired of being forced to give up and move on. And joining me live on India Today are Sampreet Koshta, who is victim Ashwini Koshta's brother. And we also have Suresh Koshta ji, he is Ashwini Koshta's father. Suresh ji, Sampreet ji, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। पहले तो हम इंडिया टुडे की तरफ से हमारा संवेदना व्यक्त करते हैं आपको और आपके परिवार को। ये एक बहुत ही दुखद समय है, तो इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस शो में आने के लिए। सुरेश जी, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं, अभी तक जो जांच हुई है, जो एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से, जो बेल मिल गया है ये जो अंडर एज ड्राइवर को, सब मिला के क्या आप खुश हैं, क्या आप सैटिस्फाइड हैं कि क्या क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? नहीं सर, सेटिस्फेक्शन तो बहुत दूर की बात हो गई। जो रिजल्ट आया था कि आप ऐसे लिख दो और काउंसलिंग कर लो, उससे ये समस्या हल नहीं होने वाली है सर। तो सेटिस्फाइड तो नहीं।
और जैसे जैसे आपके पिताजी ने अभी बताया कि ये बिल्कुल मजाक है, ये जो बेल के कंडीशंस है संप्रीत जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल मजाक है। और इसलिए जो गुस्सा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ज्यादातर सोशल मीडिया पे, वो है कि ये इट्स अ जोक, ये मजाक है कि ये बेल कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं। आपको आपको क्या लगता है, क्योंकि एक परसेप्शन काफी बन गया है कि ये इन्फ्लुएंस के वजह से है, ये पावर के वजह से है, ये एक्सेस के वजह से है, ये कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पुणे में, इसलिए एक सेलेक्टिविटी ऑफ लॉ आता है, इसलिए कुछ लोग 15 घंटे के बाद उनको बेल मिल जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं कि यही चल रहा है पुणे में? पुणे में नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये तो पूरे इंडिया में ही चल रहा है। जी। जिसके पास पावर है वो अपनी पावर दिखाता है और गलत तरीके से दिखाता है। जहां सच है वहां पे सच के तरफ ही जाना चाहिए, जहां झूठ है वहां पे झूठ की तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। जो जो सही है उस पे ही हमें रहना चाहिए, ताकि जो आपकी पावर है उसका सही उपयोग करो आप। आपकी पावर है तो सही उपयोग करो आप उपयोग कर रहे हो अपने गलती को छुपाने के लिए, तो वो आपकी पावर का मिसयूज है, यूज नहीं। सुरेश जी, हमारे कवरेज के बाद नेशनल मीडिया में जो ये स्टोरी आ गया है, इंडिया टुडे के कवरेज के बाद, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी एक जांच ऑर्डर की है कि क्या इस लड़के को, इसके परिवार के को लेकर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है किसी तरफ से, किसी पुलिस की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। क्या आपको लगता है कि इस जांच का जवाब ऑलरेडी हमारे सामने है? इस लड़के को 15 घंटे में बेल ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे आपने बताया कि बेल के कंडीशंस बिल्कुल मजाक हैं। क्या आपको लगता है कि इस जांच का जवाब ऑलरेडी काफी क्लियर है सुरेश जी? जी बताइए। अब जांच तो, भारत में तो जांचें चलती रहती हैं, निष्कर्ष कब निकलता है वो तो इंसान को कब पता चलेगा, वो तो सोचते ही रह जाता है। कुछ क्विक एक्शन हो तो बात अलग, वरना जांच कमेटी बैठ गई है, समिति अपना रिपोर्ट देती रहेगी, उसी का एनालिसिस होते रहेगा, बस उस पर एक्शन तो कुछ होना नहीं। अगर सुरेश जी, अगर आप अभी और हमारा कवरेज जो है इस स्टोरी पे पूरा महाराष्ट्र सरकार देख रही है, बहुत बहुत क्लोजली देख रही है, और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं सुरेश जी, अगर आप इस वक्त सीधा देवेंद्र फडणवीस को या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कुछ संदेश देना चाहते हैं एक बाप के तौर पर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनको? मुख्यमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक्सीडेंट की वजह से कितनी मौतें हो रही और कितने होनहार लोग इसमें काल की ग्रास बन रहे, तो जो ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई हो। वो अपनी जिम्मेदारी से वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे, उन पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि उनने यदि इस टाइप के कार्य ना किए होते पब में माइनर को शराब ना परोसी गई होती, उनकी ट्रैफिक में जांच होती, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक के नियम है कहां पर कितनी स्पीड की गाड़ी होनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए था, उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए थी। इस प्रकार से अपने महकमे को दुरुस्त करें जिसमें कई जानें बच जाएंगी, कई होनहार बच्चे बच जाएंगे। ये खाली मेरी बेटी की क्षति नहीं है या मेरी क्षति खाली नहीं है, ये देश की भी क्षति। देश ने एक होनहार बच्ची खो दी तो ये देश की क्षति है, तो इस तरीके से देश की क्षति होने से मुख्यमंत्री जी बचाएं, बस। जी बिल्कुल, और आपके शब्दों से हम बिल्कुल 100% सहमत हैं सुरेश जी कि ये देश के लिए एक लॉस है, ना सिर्फ एक परिवार की, और अश्विनी जो है एक चेहरा बन गया है इस इशू का, और इसलिए ये जो इतना वायरल चल गया है इस देश में,
कितने लोग इससे इससे अफेक्टेड हैं इस स्टोरी को लेकर, हम तो रियल टाइम में देख रहे हैं इस कवरेज में। संप्रीत जी, एक आखिरी सवाल आपकी बहन की तरफ से। अश्विनी एक होनहार, यंग, एम्बिशियस, प्रोफेशनल लड़की थी जो काम कर रही थी, पढ़ाई के बाद पुणे में जिंदगी जी रही थी, प्राइम ऑफ हर लाइफ में थी जब ये दुर्घटना हुई है। उसके तरफ से, अश्विनी की तरफ से आप देश को, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? संप्रीत, आखिरी सवाल। अश्विनी तो यही बोलती कि जो भी आप कर रहे हैं वो अपने पूरे मन से करें, जैसे वो करती आई है हमेशा। वो जिस भी काम को पकड़ती है उसको पूरे मन से करती है अपने, और सक्सेस उसको मिलती है हमेशा। और सेकंड चीज मैं अपनी तरफ से लगाना चाहूंगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव पे बहुत सख्त लॉ लगने चाहिए, क्योंकि इससे इससे बहुत 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 जानें बच सकती हैं। बस अश्विनी ने कभी ड्रिंक नहीं की सर। वो अभी इस जनरेशन की लड़की थी, मगर उसके उसूल बहुत बहुत पक्के थे। वो ना ड्रिंक करती थी, वहाँ वो पार्टीज में जाती थी, वो पार्टी में ही गई थी, लंच करने गई थी, मगर ड्रिंक में कभी नहीं कर रही। तो मैं भी अभी के यूथ से, ये जो जनरेशन है, ये यूथ से मैं ये बोलना चाहूंगा अश्विनी की तरफ से कि आप थोड़ा बाहरी दिखावा कम करें। शराब पीने से ही एंजॉयमेंट नहीं होता, और शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। संप्रीत जी और सुरेश जी, मैं फिर से बताऊंगा कि ये हमारा जो कवरेज है स्टोरी का, ये एक वन ऑफ केस बिल्कुल नहीं है। हम लगातार कवर करेंगे इस इशू को जब तक जस्टिस नहीं मिलता है अश्विनी और अनीश को। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी और संप्रीत जी। थैंक यू। Joining us live, speaking out for the first time, is Aqib. He is a friend of Anish and Ashwini, and he is the one who was not only witness to what happened, he also filed the FIR with the Pune police. Aqib, आपका स्वागत है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम इस इंसिडेंट पर लगातार कवरेज कर रहे हैं इंडिया टुडे पर। काफ़ी एक्शन ऑलरेडी लिया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी भी बहुत सवाल हैं। उस रात क्या हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? आप भी थे वहां पर अकीब, क्या बता सकते हैं कि क्या हुआ था? जी देखिए, एक्चुअली हम लोग नॉर्मल ऐसे वीकेंड पार्टी के लिए चले गए थे वहाँ पे जी। तो वहाँ से हम जब आ रहे थे तो अनीश और अश्विनी ऐसे थे कि उन लोग को लेट हो रहा था तो वो आगे चले गए थे। तो उस टाइम पे फिर 1:30 समथिंग अराउंड हो रहे थे। तो वहाँ से हम लोग बस घर के लिए जा रहे थे। अनीश और अश्विनी हमसे आगे चले गए थे, फिर उनके पीछे पीछे हम भी जा रहे थे। तो बस यही है कि एक पीछे से फोर्स वाली जो गाड़ी है वो आई है और उनको पीछे से बहुत जोरों से टक्कर दे दी। तो उस चलते हुए अनीश और अश्विनी जो है दूसरे कार से टकरा गए और वो वहाँ पे जस्ट रोड साइड पे गिर गए जख्मी हालत में। फिर वो कार के जो कार है उसके जो एयर बैग्स वगैरह थे वो खुल गए। इसी वजह से वो कार वाला वो आगे चल नहीं गया। और वहाँ के जो लोकल्स थे फिर वहाँ से उन्होंने पकड़ा उनको। उसके बाद में जब हम उनके पीछे पीछे से आ रहे थे तब हमें बस एक सीट की आवाज आई। उस सीट की आवाज को फॉलो करते हुए हम वहाँ पे पहुंचे। वहाँ पे पहुंचने के बाद हम जब देख रहे थे कि बहुत से क्राउड वहाँ पे जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, और बस हम वहाँ पे जाके देखे तो तब हमने देखा कि अनीश और अश्विनी पड़े हुए। तो हम उस टाइम पे कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाए। बस उसी वक्त हम लोगों ने फिर वहाँ के लोकल्स की मदद से कैब वगैरह करके अनीश और अश्विनी को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जब लेके गए तो उनके जब चेकअप हो रहा था तब वहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एंड देन फिर उसी के बाद वहाँ पे पुलिस वगैरह आ गए, फिर FIR वगैरह हो गई। जी आकिब, जब FIR रजिस्टर हुआ था, जब ये FIR फाइल हो रहा था पुलिस की तरफ से, क्या कुछ दबाव था, क्या कुछ प्रेशर था? क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इस लड़के को बिल्कुल 15 घंटे में उसको बेल मिल गया है। क्या आपको कुछ दिखा ऐसा कुछ? जी एक्चुअली हमें तो ऐसे कुछ दिखा नहीं, कि उन लोग को अलग रूम में रखा गया था और हम लोग का जो स्टेटमेंट वगैरह ले रहे थे वो दूसरे रूम में था। वैसे तो कोई हम पे प्रेशराइज वगैरह किया नहीं गया, बस हमको जो भी है कि पूछ रहे थे कि स्टेटमेंट्स क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना ही। बाकी उनको ट्रीटमेंट वगैरह तो चल रही थी, क्योंकि ये हमने भी देखा है
उन लोग को पानी की बोतल्स वगैरह सप्लाई हो रहे थे, वो फोन वगैरह यूज कर रहे थे। तो हमने ये चीज भी पूछी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने उन पे एक्शन लिया कि फोन वगैरह हम लोग यूज नहीं करने देंगे ऐसे वैसे। बट उसके बाद उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता, बट हमको फिर हमारी जो स्टेटमेंट है वो लेने के बाद हमको बोला गया कि आप जाइए, आपको अगर कुछ लगेगा तो हम वापस से फिर बुलाएंगे। एक्चुअली हॉस्पिटल में भी वगैरह कोई ज्यादा लोग नहीं थे, तो फिर हम लोग वापस से हॉस्पिटल चले गए कि अनीश और अश्विनी के पास, क्योंकि वहाँ के भी बहुत से फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। वो लोग भी हमको बोल रहे थे कि पोस्टमार्टम के लिए वगैरह लेके जाना है, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। ये एक्सीडेंट के बाद आखिरी सवाल, एक्सीडेंट के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो है कि ये जो लड़का था जो गाड़ी में था वो पिट रहा है, एक क्राउड फॉर्म हो गया वहां पे, लोग उसको मार रहे हैं। ये कैसे हुआ? क्या वो ही ड्राइव कर रहा था? क्योंकि उनके वकील अब कुछ सवाल उठा रहे हैं कि किसको पता है कि कौन चला रहा था गाड़ी, ऐसे सब सवाल उठ रहे हैं अभी। जी एक्चुअली ये चीज भी मेरे को क्लियर करनी थी। जो वीडियो जो है उसमें जो लड़के ने जो ब्लू कलर का शर्ट पहना है, एक्चुअली वो साइड में बैठा हुआ था। जो मेन अक्यूज है उसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था। जी। जो वीडियो बनाया गया है वो वहाँ पे उसको कैप्चर कर रहा था, क्योंकि ये लोग जब ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था कुछ देर तक। फिर उसके बाद में वहाँ के लोकल्स आके उसको गाड़ी से निकाले। जब एक्सीडेंट हुआ जो उसके साथ बैठे हुए थे उतर के भागने की कोशिश कर रहे थे, तब लोकल्स ने उनको पकड़ के वो मारपीट कर रहे थे उनको। क्या ये सब जी जी अकीब, बोलिए। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? क्योंकि ये जो परिवार है पुणे में वो काफी एक पावरफुल परिवार है, इन्फ्लुएंशियल परिवार है, बिल्डर का परिवार है। क्या आपको लगता है, बाप अभी गिरफ्तार हुआ है आज सवेरे छत्रपति संभाजी नगर में, क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा अश्विनी और अनीश को? जी बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि सभी न्यूज चैनल्स वगैरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अभी फिलहाल सभी पॉलिटिशियंस हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चलते सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस सर जी वो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी प्रेशराइज किया हुआ है सब चीजों पे लेके, तो हम लोग बस होप कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए इस चीज को लेके। अकीब, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।